Hello, am I audible? Okay, fine. So for today's lecture, we are going to do one practical assignment of DBMSL lab on PLSQL. I'll show the assignment statement. One second. Hope you are able to see the screen. Yes. This is what we are going to perform today. Now, what we have to do is, hello, am I audible? Yes. Now, what we are going to do is, we are doing this program. Can anyone read this assignment statement? Anyone? Yes. Someone please read the assignment. Tejas Bankar, can you read this assignment? Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes. This one. Is it visible or shall I increase the size? We have to write. We have to perform this assignment. Read it. PLSQL stored procedure and stored function. Write a stored procedure, namely procedure grade, for the categorization of student. Hmm. If marks scored by students in examination is less than equal to 1500 and marks greater than equal to 990, then student will be placed in distinction category. If marks scored are between 989 and 900, category is first class. If marks are 899 and 825, category is higher second class. Okay. Write a Now, PLSQL block for using procedure created with above requirements. hmm, you have to Student create. marks Hmm. and results. These are two tables. Now, one problem is there in this is they haven't considered here roll number, but it should be there. How we can directly assign roll number in result column. So what we are going to, we'll be just rechanging this assignment, and we, while creating student marks tables, will be using roll number, name and total marks. Okay. And for result table, we'll be again storing roll number, name and class. Now frame the separate problem statement for writing PLSQL store procedure and function in line with the above statement. The problem statement should be clearly stated the requirement. So they haven't mentioned any mandatory part, but we'll try first with this assignment, and for function you can try some another assignment. I'll let you know what to do for functions. Okay. So how you are going to start with this assignment? This is how we will be writing a stored procedure first. Now for stored procedure we have to create a function. Now they have given a function name, that is procedure grade. We have to write the function name same like this. Okay. Then we have to perform categorization of student. So what will be the best solution? If I have a student table having roll number, name and total marks, so directly I one by one I have to update this result, or shall I take all the table, all these entries in the table at once and I'll assign everything into the result table? What is the best option? Because see, this marks tables is already there, we have each student marks. Then why, what is the need of have taking one by one roll number and updating the categorization of that student? So better option what we are going to do is, for this we'll be writing a cursor, because I have to take whole table. Clear? So what I'm going to use here is, I'll be writing a cursor. Now I'll fetch the marks of the student. Clear? Yes. What I'm going to do, in spite of taking a user
why instead of taking roll number from user and checking for their marks, what I'll do is I'll write a cursor in function. Clear? And I'll make that cursor to be used for each and every meaning each and every entry in the table. Clear? For each student they will categorize the class of the students. Can we start with the assignment? You got the concept of assignment, what it is saying. We have to write a store procedure. Clear? The procedure name is also given, the categorization of marks is also given. Now what we are going to do is we'll be writing this program. Yes. Now what I'm going to start with is, first what is our first step? You'll have you have to create what? Tables now. Who will tell me? Okay, I'll only ask the name of the student. Ashwini Biradar. Ashwini. Ashwini, are you there? If you are not answering now, I'll mark attendance for today's lecture. Okay. Next. Hmm. Prasad Rahane, are you there? Prasad? Yes, ma'am. Okay. Prasad, can you tell me how I'll start this assignment? Yes, Prasad. I'll start with the new table. Yes, ma'am. Okay. What I'll write is I'll create a new table. Now this is my connection. I'll open my table. Now what will be my first table is, the table name is student table, where the student details is present. I'll use some another name. Yes, student table. What this table has? Roll number. So as per our visualization, what we have decided is, meaning what we understood to the system is, this roll number will be assigned to a single student. So I'll make it as a primary key. The next column I'll add is name. Okay, name is Barker. Then third column is, I'll have to take a marks. So I'll use marks, and marks I will take it the number. Here, this will be my student tab. I'll okay. We have to put some records in this table. Agree? Huh. So what I'm going to do is, I'll open this result student tab, this table, and I'll insert some data. I'll use roll number 1. Name of the student is, I'll use A. Then marks of the student is, I'll take is 1300. So we have to prove each and every condition. So I'll use one entry of this 1300. I'll assign second entry. I'll make this name as B, and I'll take is 9890. Okay, it's okay. Then I'll use one more entry. I'll use plus. I'll use 3 C, and again I'm use 700. I'll use record number 4. Its name is D, and I'll make it as 500, which is not provided. So we'll try for this case also. So this is how I have entered 4 entries in this table. Now there will be one more table. There will be one more table, and that table name will be result table. So I'll use result tab. Yes, and in this result tab, what will be the first case is roll number. So if you want to make this roll number as a foreign key, then also you can try. So I'll use this, then name. The name is again varchar, and next is I have to categorize. I have to give a grade. So I'll write a grade column, and that will be also varchar. Okay, and I'll make it okay. Now this table will be empty. Yes, yes, that roll number table, result tab table will be empty. Now what is my next step? I have to create a procedure. Now I'll go on procedure. I'll make it as new procedure. What is my procedure name is procedure grade. See, the name is already exists, so I'll use new.
Okay, this will be my procedure, and what will be my input? Yes, Nitisha. Nitisha. Hello. Rajesh Pawar. श्रेयस. इन लोगों का सबका एब्सेंट ही लगाने वाली हूँ आज. श्रेयस है. सिद्धि. सिद्धि, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ सिद्धि, बताओ व्हाट विल बी द पैरामीटर ऑफ दिस फंक्शन और प्रोसीजर. एनीवन? क्या हो सकता है उसका पैरामीटर, क्या होगा? मुझे इन पैरामीटर की जरूरत है या नहीं है? Make it fast. We have to complete one more assignment. Yogeshwaram. Sampada. ऋतुजा. ऋतुजा नाइक. रोहित. Bhushan. Bhushan, are you able to tell me what will be the parameter? अभिजीत वाघमारे. Rishabh Kumar, can you give answer? Rishabh. Yes, ma'am. Tell na, what will be the parameter? Ma'am, can you show me the function again? Yes. Shall I show Can the keep screen? Huh? name of the student, That will be parameter. name of the Okay. um, Okay. and roll number. Okay. Rahul Singh, can you tell me? Yes, ma'am. The complete tuple can be also used, and marks and roll number only can be used. मैंने आपको क्या बोला था लास्ट लेक्चर में? व्हेनेवर वी विल क्रिएट एनी फंक्शन और प्रोसीजर, उसका पैरामीटर उसका इनपुट होना चाहिए, बराबर. अभी इस केस में हम लोग क्या लिख रहे हैं? कर्सर लिख रहे हैं. तो ऑलरेडी हमारा पूरा टेबल क्या होने वाला है? एक साथ एग्जीक्यूट होने वाला है. तो इसमें हमें इनपुट पैरामीटर लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हम इंडिविजुअल रोल कॉल के लिए नहीं लेने वाले हैं. वाई? बिकॉज दैट इज अ टेडियस जॉब. हमारा काम क्या है? अगर मेरे पास रिजल्ट का टेबल है तो सबको ग्रेड मिलना चाहिए. ऐसा होता है क्या कि आप एक एक सिंगल स्टूडेंट का रोल नंबर लेते रहते हो और उसका ग्रेड कैलकुलेट करते हो? वैसा नहीं होता. सो यू हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट. आप एक्सेल में भी काम कर रहे होंगे तो आप क्या करोगे? एक फॉर्मूला लिखोगे एंड यू विल ड्रॉप डाउन. क्लियर ना? तो हमें वही करना है. तो इस केस में मैं इन पैरामीटर क्यों नहीं लेने वाली हूँ? क्योंकि मेरे लिए मैं वेरिएबल्स के साथ खेलने वाली हूँ. आई विल राइट कर्सर. मैं कर्सर लिखने वाली हूँ. सो मुझे क्या है कि यहाँ पे पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट आई विल मेक इट इज, मैं इसको ब्लैंक रखती हूँ. गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि मैं यहाँ पे कर्सर यूज कर रही हूँ. कर्सर खुद में ही एक वेरिएबल होगा जो पूरा टेबल लेने वाला है. यस. हाँ. अभी आप लोगों को क्या करना है? वेरिएबल डिक्लेरेशन करना है. तो जो वेरिएबल्स आपको यूज करना है वो आपको एज के बाद डिफाइन करना है. सो मेरा फर्स्ट वेरिएबल क्या है? कर्सर. अब कर्सर को मैं क्या नाम दूंगी? जो आपको डिपेंड करता है वो. तो मेरे लिए कर्सर C2 है. इज सिलेक्ट. अब आप क्या कर रहे हो? सिलेक्ट. कौन से कॉलम है? रोल, नेम, और तीसरा कॉलम है मार्क्स. ये तीन कॉलम कहाँ से ले रहे हो आप? रिजल्ट स्टूडेंट टैब में से.
बराबर. सो दिस इज हाउ कर्सर इज होल्डिंग. अब मुझे क्या चाहिए? आई हैव टू स्टोर व्हाट? रोल नंबर भी चाहिए होगा, नेम भी चाहिए होगा, मार्क्स चाहिए होगा फॉर कैलकुलेशन और उसका सीरीज चेक करने के लिए. तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज आई हैव टू हैव 3 वेरिएबल्स. अब आपको एक ऑप्शन है, नई चीज बता रही हूँ, सुन लो. ठीक है. इफ आई वांट टू डिफाइन अ रोल नंबर और मुझे इसका डेटा टाइप नहीं पता है जो टेबल में क्या होगा, बराबर. आपको इसका रोल नंबर का डेटा टाइप नहीं पता है कि टेबल में इसका एक्चुअल डेटा टाइप क्या होगा, बिकॉज दिस रोल नंबर शुड मैच द टेबल कॉलम का डेटा टाइप, लेकिन पता नहीं होगा. सो इन दिस केस व्हाट यू आर राइट इज स्टूडेंट. आप लिख सकते हो टैब परसेंट टाइप. अब इसका मतलब क्या हुआ? जो स्टूडेंट टेबल का, सॉरी, स्टूडेंट टेबल डॉट रोल, जो स्टूडेंट टेबल का रोल नंबर कॉलम होगा उसका जो डेटा टाइप होगा वो मेरे रोल नंबर को असाइन होना चाहिए. क्लियर? अगर मुझे नेम कॉलम का डेटा टाइप नहीं पता है वहां पे क्या लिखा है, तो आई यूज अंडरस्कोर टैब डॉट नेम. ये क्या है? उस टेबल के कॉलम से उसका डेटा टाइप. थर्ड पार्ट है जो मुझे चाहिए मार्क्स. अब मुझे मार्क्स का नंबर पता है तो आप नंबर डालो. अगर आपको याद नहीं आ रहा है टेबल में फिर से जाके देखने से अच्छा है यू कैन यूज लाइक दिस पार्ट. सो आप लिख सकते हो स्टूडेंट टैब डॉट नेम, सॉरी मार्क्स चाहिए ना, मार्क्स परसेंट टाइप. तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने जो टेबल के कॉलम होंगे उनका जो डेटा टाइप होगा वो आपने इस वेरिएबल को असाइन कर दिया. ठीक है. ये हो गया एक पार्ट. सेकंड पार्ट होता है कि अगर आपको पूरी की पूरी रो यूज करना है, यू वांट टू यूटिलाइज फुल रो, देन यू हैव, आप यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल ले सकते हो, उसका डेटा टाइप आप कर सकते हो स्टूडेंट स्टूडेंट टैब परसेंट रो टाइप. ये एक अलग चीज है. सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज इज स्टूडेंट टेबल परसेंट रो टाइप. यही है उसका फॉर्मूला सिंटैक्स. तो रो टाइप यूज करने से क्या होगा? जो सिंगल रो का पूरा डेटा टाइप होगा, एक रो में अगर 3 कॉलम्स है तो तीनों कॉलम का जो डेटा टाइप होगा वो आपके एक टेम्पररी वेरिएबल को असाइन होगा. एक बार इसका सिंटैक्स चेक करना, इसको रो टाइप बोलते हैं, ये पक्का है. सो इट्स अ रो टाइप, परसेंट रो टाइप यूज करते हैं. ठीक है. सो फॉर माई केस आई एम यूजिंग दिस 3 वेरिएबल. मैंने इसको परसेंट टाइप के साथ लिया बिकॉज आई वॉन्ट दिस वेरिएबल टू बी यूज इंडिविजुअली. और मुझे क्या लगने वाला है? if I require any more variable then I'll write here. अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? what I have to do is, अब आपने क्या किया, खुद का कर्सर लिखा है. so this cursor is explicit cursor. clear? explicit cursor लिख रहे हो. explicit cursor लिख रहे हो इसका मतलब आपने explicit cursor को इनिशियलाइज किया. अब आप उसको ओपन करोगे. yes, you'll open that cursor. then what you have to do is you have to go in a loop. देन लूप के अंदर आप क्या करोगे? एग्जिट फेच करोगे. आप फेच करके क्या करोगे? फेच C2 इनटू वेयर यू आर गोइंग टू फेच इज आर रोल. आई टेक अनदर वेरिएबल, इधर RL लेते हैं, NE लेते हैं और MS लेते हैं. सो आई टेक दिस, तो एम्बिग्यूटी नहीं होगी. RL NE कॉमा MS. ठीक है. नाउ एग्जिट. लूप कब एग्जिट होगा? एग्जिट व्हेन C2 के पास रिकॉर्ड नहीं मिलता है. तब तक आप लूप में रहो. जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो लूप इज गोइंग टू ब्रेक. नॉट फाउंड. ठीक है. यू हैव टू एंड दिस लूप. बराबर. एंड यू हैव टू क्लोज दिस कर्सर, क्लोज C2. अब आपका एक स्टेप बचता है जो आपको स्क्रिप्ट लिखना है. स्क्रिप्ट में क्या लिखना है? वी हैव टू जस्ट चेक व्हाट द कंडीशंस. इफ MS आपको रेंज दिया है प्रोग्राम में, दे हैव गिवन यू रेंज. See, they have given you range. First range is marks का value less than 1500 and greater than 990 होगा तो the student will be placed in distinction category. Clear? So what you will be writing? MS. Yes. बराबर लिख रहे हो ना?
ग्रेटर देन, इस रेंज में आएगा, लेस देन 1500 एंड ग्रेटर देन, इधर आने से अच्छा कॉपी समवेयर इज इन कमेंट. First range अपनी clear हो गई 990. Then what we have to do is, then we have to insert, where insert into result tab. क्या insert करोगे? RN, NM, NS ना, NE, RL, NE and distinction. अगर ये नहीं होगा तो else if next condition, ये first condition होगी. Next condition is marks is less than 989 and what I'm going to do is, this student will be categorized as first class. अगर ये नहीं होगा तो एलसिफ में जाएगा. एलसिफ थर्ड रेंज का दिया, H99 and 825. Then again we will going to insert into result tab. लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, हायर सेकंड क्लास. So I'll write higher. अगर ये सब कंडीशन नहीं होगा, एल्स आप लोग और भी रेंज सेट कर सकते हो. I'll make that as no grade. They haven't assigned, so either you can make it as pass class, fail class, और भी आप edit कर सकते हो. And that will end में and if. अभी what will happen is, the cursor is going to fetch one record. उसका रोल नंबर, नेम और मार्क्स लेगा, इन सब कैटेगरी में चेक करेगा, अकॉर्डिंगली ऑपरेशन करेगा, लाइक इंसर्ट करेगा, एंड देन द लूप इज गोइंग टू बी कंटिन्यू. तो आपको क्या करना है, भाई इसको देख लेते हैं कंपाइल हो चुकी है क्या नहीं. इट्स कंपाइल्ड विदाउट एनी एरर. मैम वो रिजल्ट टैब अंडरस्कोर न्यू है टेबल का नाम. क्या हुआ, वो टेबल का नाम रिजल्ट अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर न्यू है. न्यू है? हाँ नहीं, हमने प्रोसीजर का नाम न्यू लिखा है. देखो एक मिनट चेक कर लेती हूँ. सी, मैं टेबल्स में जा रही हूँ. जो हमारा फर्स्ट टेबल है, दैट वो स्टूडेंट टैब है, वो करेक्ट है. हाँ वो करेक्ट है, ठीक है, उसका वैल्यूज दिख रहा है. फिर दूसरा टेबल मैंने आपको बोला रिजल्ट टैब, तो रिजल्ट टैब इनिशियली एम्प्टी है. और अच्छा हमारा प्रोसीजर ग्रेड का नाम है, प्रोसीजर ग्रेड ऑलरेडी था, तो हमने अंडरस्कोर न्यू कर दिया. ओके मैम. ठीक है, हाँ ये समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग, कि हमने एक एक रोल नंबर नहीं लेते हुए हमने डायरेक्टली क्या किया, कर्सर यूज कर लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, नया वर्कशीट ओपन करेंगे, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज, कैसे कॉल करोगे प्रोसीजर को, हाउ टू कॉल प्रोसीजर. आप लोग इंटरेक्टिव क्यों नहीं रहते हो, इतना नई चीजें सीखने को मिल रही. प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज रन करके पूरा एक्सप्लेन करके कोई नहीं बताएगा. स्टिल आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, लेकिन आपसे इंटरेक्शन होता ही नहीं है.
nobody speaks. What happens? आपको हर बार आवाज देना पड़ता है, बोलो कोई तो बोलो, like that. सिर्फ आई थिंक ऋषभ, राहुल, कार्तिक और तेजस, इसे 4-5 ही स्टूडेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्स देते हैं हर चीज का. नहीं समझ में आ रहा? कौन बताएगा फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? सुशील, सुशील बताओगे हाउ टू कॉल फंक्शन? फंक्शन नहीं, सॉरी, प्रोसीजर. सेजल, हाउ टू कॉल प्रोसीजर इन PLSQL? So this is the case. Begin, प्रोसीजर का नाम, प्रोसीजर पेड, अपना था न्यू, yes, no parameter, semicolon and end. This is one way. Another approach is execute, execute and प्रोसीजर का नाम, सेमीकोलन. इधर ये ऑप्शन ट्राई करो या ये वाला पार्ट ट्राई करो. ठीक है, आई विल नॉट यूज दिस, आई विल राइट दिस. ओके, अभी क्या हुआ? PLSQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड, लेकिन हमने कोई भी चीज आउटपुट में डिस्प्ले नहीं करवाया, तो अपना कहाँ होना चाहिए सब कुछ? टेबल. सो यू गॉट दिस. ये अपना रिजल्ट टैब था, उस पर आपके क्या हो गया? सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर ऐड हो गए, नेम ऐड हो गया और सबका क्या हो गया? ग्रेड ऐड हो गया. सो उसको डिस्टिंक्शन कैटेगरी में बैठ रहा है, सेकेंड क्लास में बैठ रहा है, उसको ग्रेड ही नहीं असाइन हुआ बेस्ड ऑन द मार्क्स व्हाट वी हैव पुट. सो दिस इज हाउ योर प्रोग्राम रन्स. यस, एनी डाउट? Yes, clear with this assignment? You have to perform same assignment. Okay. So why we have written cursor? Why we haven't taken input from user? Why we haven't set any parameter? These all answers will be asked in exam. They will ask you. There should be your. You have to defend the answer. Why we are taking this thing? Why we are not taking this thing? Why have taken a this primary key for roll number? Because ऐसे कभी नहीं होता, एक रोल नंबर को मल्टीपल मार्क्स असाइन होता है. So we have to use that also condition. और आप एक और एक चीज इसमें ऐड करना, मैंने फॉरेन की असाइन नहीं की थी, आप फॉरेन की भी लगाओ, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी पार्ट. जो चीजें आपके टेबल में आएंगी स्टूडेंट टेबल में, उसी के लिए आप ग्रेड असाइन करोगे, है ना? तो वहां पे फॉरेन की होनी चाहिए. हाँ तेजस, आई विल शेयर माय PPT. Any doubt with till now? Any of the topic which you haven't understood? Any problem with this? How we are going to solve this assignment है, ये सब सेम थिंग आपको फंक्शन में करना है. अब फंक्शन के लिए आपको दो चीजें याद रखना है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी, कि यहाँ पे आप DML ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हो. सो यू हैव टू यूज व्हाट? प्रैग्मा स्पेस ऑटोनॉमस अंडरस्कोर ट्रांजेक्शन यूज करना है, एंड यू हैव टू गो विथ कमिट एंड यू हैव टू हैंडल दैट एक्सेप्शन. ये तीन चीज आपको ऐड करना है. फंक्शन का कोड मैं आपको भेजती हूँ, ठीक है? ओनली सेम कोड सेम होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या होगा? फंक्शन की जगह प्रोसीजर का नाम, सॉरी, प्रोसीजर की जगह फंक्शन का नाम आएगा. देन योर दिस फंक्शन शुड हैव रिटर्न टाइप, तो रिटर्न टाइप आप नल डाल सकते हो, ठीक है? और आपको सिर्फ वो 3 स्टेटमेंट ऐड करना है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे. क्लियर? सो दिस विल कंप्लीट योर 1 असाइनमेंट. ओके, नाउ यहाँ पे बोला है कर्सर. नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट कम्स विद कर्सर. उसमें क्या करना है आपको? यू हैव टू डिफाइन ऑल टाइप्स ऑफ कर्सर, इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर, पैरामीटराइज और फॉर लूप कर्सर. नाउ यहाँ पे एक चीज और ऐड की है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी. इट्स अ मर्ज फंक्शन वी हैव टू यूज, ये मैं बाद में बताऊंगी. बट यू हैव टू ट्राई फॉर एनी असाइन, एनी एक कोई असाइनमेंट लेके यू हैव टू परफॉर्म ऑल दिस डिफरेंट 4 टाइप्स ऑफ कर्सर. तो इसमें आपको खुद असाइनमेंट फ्रेम करना है.
ठीक है, you will write your own assignment, you will be justifying what tables you have taken, why you have written implicit cursor, why you, for what reason you are written explicit cursor. This all you have to provide. Now when I have some industry oriented problems regarding PLSQL, we'll solve that problems. Okay, I'll yes. My screen is visible to all. Yes, ma'am. This was some questions I got from some company, and we'll solve. At least we'll try to find the solution. Okay, we'll not going to implement, but at least we'll get the flow. That will makes your practice, because in exam you might be getting such kind of questions. Clear? So what is first question is, write a PLSQL block that takes department number from user, okay, and increase the salary of all the employees belonging to that department by 10%. The block should display on screen how many records are updated. So who will tell me the assignment, how this assignment can be implemented? We are going to write a normal unnamed block. We are not writing any function. Clear? So we are writing unnamed block. So how we are going to implement this assignment? What will be your input? Yes, who will tell me? Atharva Salunke, are you there? Yes, ma'am. Atharva, can you speak me? How will solve this assignment? How to solve this Okay. assignment? Table which contains name of user and salary column. नहीं, हम लोगों को टेबल नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, वैसे कुछ टेबल होगा। हम लोगों को एज पर क्वेश्चन में क्या अंडरस्टैंड हो रहा है, तो फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि टेबल में क्या हो सकता है। सो ये इन्होंने क्या बोला, राइट अ PLSQL ब्लॉक दैट टेक्स अ डिपार्टमेंट नंबर, ठीक है, फ्रॉम यूजर एंड इंक्रीजेज द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज बिलोंगिंग टू दैट डिपार्टमेंट। तो हम ऐसा कंसिडर करें कि यहाँ पे ये होगा, एक टेबल होगा, एंड दैट टेबल नेम सपोज उसका नाम होगा एम्प्लॉय, क्लियर, और उस एम्प्लॉय टेबल में आपका एम्प्लॉय आईडी हो सकता है, ई नेम ले सकते हैं हम लोग, सैलरी, और हम लोग उसका डिपार्टमेंट नंबर ले। क्लियर? कंसिडर कर लो आपका ये एक टेबल होगा, एंड दूसरा टेबल जो होगा उसमें आप लोगों को डिपार्टमेंट का नाम चाहिए होगा, सो दैट विल बी डिपार्टमेंट नंबर एंड उसका डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, हम लोग ऐसे कंसिडर करते हैं बेस्ड ऑन दिस असाइनमेंट। अब उन्होंने एज पर द रिक्वायरमेंट, हम लोगों को ये टेबल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, वी विल बी फोकसिंग ओनली दिस टेबल। अब हम लोग को यूजर से व्हाट वील इनपुट टिल्स टेक, यूजर से क्या लेना है, व्हाट वी आर गोइंग टू टेक इज फ्रॉम यूजर अ डिपार्टमेंट नंबर, हम लेंगे डिपार्टमेंट नंबर। ठीक है, अब डिपार्टमेंट नंबर के अकॉर्डिंगली व्हाट वी हैव टू डू इज उस डिपार्टमेंट की सैलरी इंक्रीज करना है। मतलब अगर सपोज आपके टेबल में, ड्रॉ सम टेबल, ठीक है, अब यहाँ पे हमने ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, सपोज एम्प्लॉय आईडी 1 है, उसका नाम ए, उसकी सैलरी 5000 है, एंड उसका डिपार्टमेंट नंबर 1 है। दूसरा बंदा लिया, उसका नाम है बी, एंड आई विल टेक इज 1000, एंड उसका डिपार्टमेंट नंबर 2 लिया। देन देर इज वन मोर एम्प्लॉय 3, एंड उसका नाम सी लेंगे, एंड माइट बी ही इज हैविंग सैलरी 9000, उसका डिपार्टमेंट नंबर भी 1 होगा। ठीक है, लाइक दैट। अब व्हाट वी हैव टू चेक इज 4, इसका नाम लिया डी, और यहाँ पे लिया आपने 1000, एंड इसका डिपार्टमेंट नंबर भी 1 है। नाउ अगर मैं यूजर से डिपार्टमेंट नंबर 1 लेती हूँ, सो व्हाट आई हैव टू टेक इज आई हैव टू वर्क फॉर दिस 3, ये एक रोज के लिए और ये 2 रो के लिए। सो आई हैव टू अपडेट सैलरी ऑफ द 3 एम्प्लॉयज इन द टेबल। नाउ व्हाट, फॉर व्हाट रीजन यू विल बी राइटिंग कर्सर,
कौन सा कर्सर लिखोगे पहली बात तो, ठीक है, इम्प्लिसिट लिखोगे एक्सप्लिसिट लिखोगे? एंड इंक्रीज करना उसका सैलरी, तो इंक्रीज कैसे करोगे सैलरी? वो प्रिजर्व भी होनी चाहिए। इम्प्लिसिट कर्सर लगेगा या एक्सप्लिसिट कर्सर लगेगा? एक्सप्लिसिट कर्सर लगेगा ना? एक्सप्लिसिट कर्सर लगेगा। कितने लोग बोल रहे हो एक्सप्लिसिट कर्सर लगेगा? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट देयर शुड बी एक्सप्लिसिट कर्सर रिटन हियर? कल्पेश, राहुल, कार्तिक, ओनली बोथ। सी इधर मुझे एक्सप्लिसिट कर्सर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना? एज पर असाइनमेंट व्हाट दे आर सेइंग इज डिपार्टमेंट नंबर लेना है। अगर वो डिपार्टमेंट नंबर वहाँ पे प्रेजेंट है तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपडेट लिखना है। एंड अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो आपको क्या करना, नॉट फाउंड वाला एसक्यूएल परसेंट रिकॉर्ड भेज दो, बराबर। एंड लास्ट में उसने क्या बोला, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स डिस्प्ले ऑन स्क्रीन, हाउ मेनी अपडेटेड। अगर सपोज यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 1 का 3 केसेस सेटिस्फाई होती तो रो काउंट क्या आना चाहिए, 3। समझ में आ रहा? सो वील बी राइटिंग इम्प्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर में हमें क्या करना है, सिर्फ चेक करना है वो डिपार्टमेंट नंबर उसमें प्रेजेंट है तो हमें नॉर्मल ऑपरेशन करना है। एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट वो स्टॉप कर देगा। एंड सपोज द ये रिकॉर्ड्स हम लोगों को डिस्प्ले करना है तो हमारे पास एसक्यूएल परसेंट रो काउंट का एट्रीब्यूट है, हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पे हमारा खुद का कोई कर्सर लिखे। अंडरस्टैंड कर लो। आपको सिर्फ कंडीशंस चेक करना है तो आपको एसक्यूएल इम्प्लिसिट कर्सर हेल्प करता है, ठीक है। अगर आपको ये करना है, लाइक यू हैव टू परफॉर्म समथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन टेबल, देन यू विल गो फॉर एक्सप्लिसिट कर्सर, तब आपको खुद का लिखना है। जैसे अभी परसेंटेज के लिए कोई बिल्ट इन फंक्शनलिटी नहीं, लेकिन मुझे मार्क्स रिट्राइव करके उस पर ऑपरेशन करके आई हैव टू गेन द रिजल्ट्स, देन मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि मैं खुद का एक्सप्लिसिट कर्सर लिखूँ। बट यहाँ पे वैसी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा? सो व्हाट विल बी योर दिस केस, इसका कोड क्या आएगा, व्हाट विल बी द स्क्रिप्ट? सी आई एम जस्ट नॉर्मल राइटिंग, मेरे पास कोई टेबल नहीं है, जस्ट मैं स्क्रिप्ट का सिंटैक्स बता रही हूँ। डिक्लेयर में कोई वेरिएबल लगेगा? ठीक है, मैंने यूजर से डिपार्टमेंट नंबर लिया, बिगिन लिखा, एंड लिखा, इसका डेटा टाइप नंबर डाल देती हूँ। अब आपको क्या लेना है, इस सिलेक्ट सैलरी, द सैलरी उस टेबल का कॉलम होगा इनटू माय वेरिएबल दैट इज सैल, वेयर यस, वेयर कंडीशन क्या होगा, वेयर डिपार्टमेंट नंबर, उस टेबल का डिपार्टमेंट नंबर शुड मैच विथ माय डी नंबर। यस, इफ एसक्यूएल परसेंट फाउंड हुआ तो देन आपको क्या करना है, अपडेट करना है। तो यू राइट अपडेट सेल, अपडेट वो वाला टेबल, सेट उसका सैलरी इज इक्वल टू सेल, अपडेट सैलरी इनटू क्या दिया, 10% प्राइस दिया ना,
multiplied by 0.1, I think. Huh? Then एंड इफ अगर नहीं फाउंड हुआ तो छोड़ दो। एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dbms अंडरस्कोर आउटपुट अंडरस्कोर लाइन, और हम लोग यहाँ पे लिखेंगे SQL परसेंट रो काउंट। तो आपको क्या मिलेगा, जितने बार रो काउंट मतलब ट्रेस होगा, जितने बार डिपार्टमेंट की कंडीशन सेटिस्फाई होगी, उतने हर एक का सैलरी एक एक का लेके दिस विल बी अपडेटेड, एंड आपका क्या होगा, रो काउंट बढ़ते जाएगा, एंड यू विल बी गेटिंग दैट फाइनल आउटपुट एज रो काउंट। कि आपका 3 बार अगर रो काउंट इंक्रीमेंट हुआ है तो यू विल बी गेटिंग SQL परसेंट रो काउंट फॉर दैट डिपार्टमेंट नंबर 3 times दिस लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। बस इतना ही करना है। That's it. मैम आई थिंक वो 1.1 है, सैलरी इंटू 1.1। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। 1.1 ठीक है, वो आपको समझ में आया। 10% राइज करके यू कैन इंक्रीज दैट, आइदर यू कैन टेक सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इनटू लो। ठीक है, समझ में आ रहा? स्क्रिप्ट यू विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे करना है, कैसे फ्रेम करना है। तो जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वैसे आपको यूज़ करना है। फिर हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे और नेक्स्ट असाइनमेंट्स। क्लियर? सो टिल नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड, हम लोगों ने PLSQL नॉर्मल अननेम्ड ब्लॉक देखा, then we have seen PLSQL function, then we have seen PLSQL procedure, then हमने cursor देखे। again cursor we have seen 2 different types, implicit and explicit cursor। तो आपको ये जज करके आना चाहिए why I am requiring implicit cursor and when I am going to use explicit cursor। जब आपको सिर्फ स्टेटस जानना है, आपको सिर्फ रो काउंट जानना है, आपको रिकॉर्ड्स अपडेट हुए कि नहीं, वो फाइंड हो रहा है कि नहीं, इसका स्टेटस अगर सिर्फ जानना है तो यू कैन गो विथ इम्प्लिसिट कर्सर। लेकिन अगर आपको खुद का कर्सर मतलब खुद का टेबल, 2-3 टेबल को कंबाइन करके यू हैव टू ऑपरेट, एंड देन उसका जो आने वाला वैल्यू उसको कई वेरिएबल मिले कि यू हैव टू ऑपरेट समथिंग बेस्ड ऑन योर चॉइस, देन यू कैन गो फिर एक्सप्लिसिट कर्सर। सेम असाइनमेंट को आप एक्सप्लिसिट कर्सर में इंप्लीमेंट कर सकते हो, बट द नीड वाज नॉट देयर एज पर दैट असाइनमेंट। ठीक है, एनी डाउट, एनी डाउट्स? In next lecture we'll be going to start with the triggers and cursor का assignment, और ये जो आज का assignment है, you have to complete both the assignments, that will be your practical assignments। only this part of merge function will be left, I'll be explaining in next lecture this merge wala part। there is a function, there is already a ready-made syntax available for this merge function, I'll show that, and with that we'll do one assignment based on this merge function। clear? Then we'll after completion of trigger we'll go with this assignment of trigger। this is how we'll end with our first 8 assignment of DBMSL lab 2। from this now these assignments are left। so first assignment was study of MySQL, we have already done this, and you people have submitted all the related assignments regarding this। then they have asked you design and develop SQL DDL statements which demonstrate use of objects such as table, view, index, sequence, and synonym। I think you have completed this too also। and then they have asked you 10 SQL queries on suitable DML statements, insert, delete, update, and all set operator functions। we have done this different part wise, we have done all this assignment। then last fourth assignment was all types of join, subquery, and view। so this all activities we have completed now, we'll use same activity here for this 4 assignments। clear? this I have completed PLSQL block for borrower and find table cursor, you people are going to implement this 4। if at least you try for implicit and explicit, I'll show you for loop and parameterize cursor। clear? and this assignment I have taken for today's lecture, store procedure function। and last
thing is you start working on your mini project. You design your front end, you design a back end. This time there will be separate projects for this SDL lab. You will be performing on Android, but for me I want some scripting page. Either you can go with PHP, you take JavaScript, any script, but there should be backend as database. You can go work on MongoDB too. Okay, finalize your title till this month end. Meaning next month we'll be starting working on this. Okay, any more doubts? Shall we stop here? And we'll be planning your Zensar ESD test on 11th September, that is second week of September, Friday. Okay, 11th September we have planned. So I'll share you details of this test. What will be the type? It will be 1 hour test. Okay. And whatever test we are planning before 11 will be all practice test for you people. That's it. I'll stop. Okay.